Their body parts are different, their body shapes are different, their muscle shapes are different. Some of their muscle shapes are their weak point, and some of their muscle shapes are their strong point. तो अब बात करते हैं हम मिस्टर ओलंपिया फिल हीथ की, जो लगातार 7 बार मिस्टर ओलंपिया रह चुके थे। वो अपने टाइम में सबसे डोमिनेट बॉडी बिल्डर में से एक थे, और उनका मसल, बॉडी बॉडी शेप, उनकी बॉडी सिमेट्री जो थी वो बहुत परफेक्ट मानी जाती थी उस टाइम में। तो अगर वो फिल हीथ जो है वो अपने 80% तैयारी के साथ भी एनपीसी, अगर इंडियन और पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स के साथ compete करते हैं, तो वो डेफिनेटली उनको बीट कर देंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स प्लेज द बिग रोल। For example, world of sports, mostly runners who win gold medal were from African countries like Kenya, Nigeria, Zimbabwe, Ethiopia. अगर आप उनका लिविंग स्टैंडर्ड्स देखें तो मोस्टली पीपल आर लिविंग बिलो देयर पुअर क्लास। लिविंग बिलो पुअर क्लास, उनको 2 टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल से नसीब होती है। They have no shoes for running, but they all, when come on the stage, world class stage, they beat international athletes. You can check easily on the internet. एवन 2020 में जो ओलंपिया में जो 100 मीटर की रेस थी, उसमें जिस एथलीट ने गोल्ड मेडल लिया था वो एक अमेरिकन था, जो ब्लैक अमेरिकन था, जो बाद में एक इटली का सिटीजन बन चुका था। आप इजीली इसको भी इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या जेनेटिक्स का हमारे न्यूट्रिशन में क्या भूमिका है। जी हाँ, बड़ी बहुत बहुत बड़ी भूमिका है जेनेटिक्स की हमारे। फॉर एग्जांपल, सम पीपल ड्रिंक 2 लीटर मिल्क। कुछ लोग 2 लीटर दूध पी जाते हैं पूरे दिन में, उनको कुछ नहीं होता। और कुछ लोग 1 डेढ़ लीटर दूध पी लेंगे तो उनका स्टमक अपसेट हो जाएगा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 1 कप दूध का पी लेते हैं तो उनको एलर्जी हो जाती है। सम पीपल ईट 4 एग्स पर डे, दे डाइजेस्ट इट इजीली, वो आसानी से पचा लेते हैं। कुछ लोग वही 4 अंडे खाने वाले लोग अगर 4 की शेयर कर देते हैं तो उनको डाइजेस्ट नहीं होता, उनका स्टमक अपसेट हो जाता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको 1 अंडा भी खा लेते हैं तो उनको एलर्जी हो जाती है। सेम चीज़ नट्स में आती है, सी फूड्स में आती है, सप्लीमेंट्स में भी आते हैं। दे गॉट स्किन प्रॉब्लम्स। ये सब जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। वी कैन कॉल इट जेनेटिक्स एंड लिमिटेशंस। तो अब हम बात करते हैं मसल बिल्डिंग, फैट लूज, बॉडी बिल्डिंग की। डज जेनेटिक्स प्ले रोल इन दीज थिंग्स? यस, डेफिनेटली genetics play a big role. For example, 2 persons started together. 2 लड़कियों ने इकट्ठे स्टार्ट किया। पर्सन ए इज़ इंडियन गर्ल एंड पर्सन बी इज़ ए स्पेनिश गर्ल। पर्सन ए इज़ डूइंग हिप थ्रस्ट day in day out from 4 years and still her ass is flat. But person B is doing just from 2 years. At the starting, she was also flat, but she did his glutes like a bridge, or you can say half moon. This is called genetics. How it all happens. Person A, who has only 200 muscle cells. Person B, who has 500 muscle cells. That's the difference. Hard work cannot beat genetics. Now the question is, two girls are doing same things, same cardio, they are taking same calories, but why there is a difference in between their fat loss? The answer is genetics. Genetics means your testosterone, your hormones, your hormone growth productions, your insulin rejections. These all things play a big role in your genetics. How can how can we check our genetics for bodybuilding? For beginners, first of all, you should do bulking. Bulk in like for 1 year or 1.5 year, do bulk. Then
3 or 4 months you should get your body lean, then go on the stage. For example, in bulking your weight was 80 kg, and when you go on the stage your weight was 62 to 65 kg. You were lean, but still you were not shredded. That 62 to 65 kg weight on the stage, it's your first point. Now you can go back for bulking. You should bulk 1 year or 1.5 year, then do cutting for 3 to 4 months cutting, then go to the stage. If you are increasing your weight 2 or 3 kg, then you should continue this bodybuilding. Your genetics are good, do it again. Your genetic limitations will कंप्लीट इन 4 to 6 years. 4 से 6 साल तक आपकी जेनेटिक लिमिटेशन पूरी हो जाए. देन आफ्टर डू इट विद स्टीरॉइड्स. इफ़ यू आर गेनिंग 2 to 3 kg per year lean gain, then you should continue this bodybuilding. Your health is good, your blood tests are fine, you are feeling good, your sex drive is fine, no hair loss, then your genetics are very good, you can continue your bodybuilding. आई होप आप लोगों को मेरा ये इंफॉर्मेशनल व्लॉग अच्छा लगा होगा. सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, और अपने दोस्तों से, अपने भाई बहनों से सब्सक्राइब भी करवाइए. थैंक यू सो मच. अब बात आती है कि जेनेटिक्स का हमारे न्यूट्रिशन में क्या रोल है. यस, जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है. शर्मा रहा हूँ, गांड फट रही है. क्या आपने कभी सोचा है भी, कई लोग बिना ज़्यादा मेहनत किए ही फिट हो जाते हैं, और कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलते, वो फिट होने के लिए स्ट्रगल करते हैं. क्या सब कुछ जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है? चलिए हम आज जानते हैं सच. तो जेनेटिक्स डिसाइड करते हैं आपका बॉडी टाइप, मतलब आप नेचुरली कितने स्लिम हो, मस्कुलर हो, या फिर आप फैट ज़्यादा स्टोर करते हो. अगर आप जिम जाते हो तो आप कितनी स्पीड से वेट गेन करते हो, या कितनी स्पीड से अगर आप अपना वेट लूज करते हो. इट ऑल इफेक्ट्स योर जेनेटिक्स. इवन एवरी बॉडी बिल्डर जेनेटिक्स आर डिफरेंट. देयर बॉडी पार्ट्स आर डिफरेंट, देयर बॉडी शेप्स आर डिफरेंट, देयर मसल शेप्स आर डिफरेंट. Some of their muscle shapes are their weak point, and some of their muscle shapes are their strong point. तो अब बात करते हैं हम मिस्टर ओलंपिया फिल हीथ की, जो लगातार 7 बार मिस्टर ओलंपिया रह चुके थे. वो अपने टाइम में सबसे डोमिनेट बॉडी बिल्डर में से एक थे, और उनका मसल, बॉडी बॉडी शेप, उनकी बॉडी सिमेट्री जो थी वो बहुत परफेक्ट मानी जाती थी उस टाइम में. तो अगर वो फिल हीथ जो है वो अपने 80% तैयारी के साथ भी एनपीसी, अगर इंडियन और पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स के साथ compete करते हैं, तो वो डेफिनेटली उनको बीट कर देंगे. क्यों? बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स. जेनेटिक्स प्लेज द बिग रोल. For example, world of sports, mostly runners who win gold medal were from African countries like Kenya, Nigeria, Zimbabwe, Ethiopia. अगर आप उनका लिविंग स्टैंडर्ड्स देखें तो मोस्टली पीपल आर लिविंग बिलो देयर पुअर क्लास. लिविंग बिलो पुअर क्लास. उनको 2 टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल से नसीब होती है. They have no shoes for running, but they all, when come on the stage, world class stage, they beat international athletes. You can check easily on the internet. एवन 2020 में जो ओलंपिया में जो 100 मीटर की रेस थी, उसमें जिस एथलीट ने गोल्ड मेडल लिया था वो एक अमेरिकन था, जो ब्लैक अमेरिकन था, जो बाद में एक इटली का सिटीज़न बन चुका था. आप इजीली इसको भी इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं. अब बात आती है कि क्या जेनेटिक्स का हमारे न्यूट्रिशन में क्या भूमिका है. जी हाँ, बड़ी बहुत बहुत बड़ी भूमिका है जेनेटिक्स की हमारे
फॉर एग्ज़ाम्पल सम पीपल ड्रिंक 2 लीटर मिल्क, कुछ लोग 2 लीटर दूध पी जाते हैं पूरे दिन में, उनको कुछ नहीं होता, और कुछ लोग 1 डेढ़ लीटर दूध पी लेंगे तो उनका स्टमक अपसेट हो जाएगा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 1 कप दूध का पी लेते हैं तो उनको एलर्जी हो जाती है। सम पीपल ईट 4 एग्स पर डे, दे डाइजेस्ट इट ईज़िली, आसानी से पचा लेते हैं। कुछ लोग वही 4 अंडे खाने वाले लोग अगर 4 की शेर कर देते हैं तो उनको डाइजेस्ट नहीं होता, उनका स्टमक अपसेट हो जाता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको 1 अंडा भी खा लेते हैं तो उनको एलर्जी हो जाती है। सेम चीज़ नट्स में आती है, सी फूड्स में आती है, सप्लीमेंट्स में भी आते हैं। दे गॉट स्किन प्रॉब्लम्स। ये सब जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। वी कैन कॉल इट जेनेटिक्स एंड लिमिटेशंस। तो अब हम बात करते हैं मसल बिल्डिंग, फैट लूज, बॉडी बिल्डिंग की। डज जेनेटिक्स प्ले रोल इन दीज थिंग्स? यस, डेफिनेटली genetics play a big role. For example, two persons started together. दो लड़कियों ने इकट्ठे स्टार्ट किया। पर्सन ए इज़ इंडियन गर्ल एंड पर्सन बी इज़ ए स्पेनिश गर्ल। पर्सन ए इज़ डूइंग हिप थ्रस्ट day in day out from 4 years and still her ass is flat. But person B is doing just from 2 years. At the starting, she was also flat, but she did his glutes like a bridge, or you can say half moon. This is called genetics. How it all happens. Person A, who has only 200 muscle cells. Person B, who has 500 muscle cells. That's the difference. Hard work cannot beat genetics. Uh, Now the question is, two girls are doing same things, same cardio, they are taking same calories, but why there is a difference in between their fat loss? The answer is genetics. Genetics means your testosterone, your hormones, your hormone growth productions, your insulin rejections. These all things play big role in your genetics. How can how can we check our genetics for bodybuilding? For beginners, first of all, you should do bulking. Bulk in like for 1 year or 1.5 year, do bulk. Then 3 or 4 months, you should get your body lean. Then go on the stage. For example, in bulking, your weight was 80 kg, and when you go on the stage, your weight was 62 to 65 kg. You were lean, but still you were not shredded. That 62 to 65 kg weight on the stage, it's your first point. Now you can go back for bulking. You should bulk 1 year or 1.5 year, then do cutting for 3 to 4 months cutting, then go to the stage. If you are increasing your weight 2 or 3 kg, then you should continue this bodybuilding. Your genetics are good, do it again. Your genetic limitations will complete in 4 to 6 years. 4 से 6 साल तक आपकी genetic limitation पूरी हो जाए. Then after, do it with steroids. If you are gaining 2 to 3 kg per year lean gain, then you should continue this bodybuilding. Your health is good, your blood tests are fine, you are feeling good, your sex drive is fine, your no hair loss, then your genetics are very good. You can continue your bodybuilding. आई होप आप लोगों को मेरा ये इंफॉर्मेशनल व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, और अपने दोस्तों से, अपने भाई बहनों से सब्सक्राइब भी करवाइए। थैंक यू सो मच। अब बात आती है कि जेनेटिक्स का हमारे न्यूट्रिशन में क्या रोल है। यस,
जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। शर्मा रहा हूँ, गांड फट रही है। क्या आपने कभी सोचा है भी, कई लोग बिना ज़्यादा मेहनत किए ही फिट हो जाते हैं, और कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलते, वो फिट होने के लिए स्ट्रगल करते हैं। क्या सब कुछ जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है? चलिए हम आज जानते हैं सच। तो जेनेटिक्स डिसाइड करते हैं आपका बॉडी टाइप, मतलब आप नेचुरली कितने स्लिम हो, मस्कुलर हो, या फिर आप फैट ज़्यादा स्टोर करते हो। अगर आप जिम जाते हो तो आप कितनी स्पीड से वेट गेन करते हो, या कितनी स्पीड से अगर आप अपना वेट लूज करते हो, इट ऑल इफेक्ट्स योर जेनेटिक्स। Even every bodybuilder genetics are different. Their body parts are different. Their body shapes are different. Their muscle shapes are different. Some of their muscle shapes are their weak point, and some of their muscle shapes are their strong point. तो अब बात करते हैं हम मिस्टर ओलंपिया फिल हीथ की, जो लगातार 7 बार मिस्टर ओलंपिया रह चुके थे। वो अपने टाइम में सबसे डोमिनेट बॉडी बिल्डर में से एक थे, और उनका मसल, बॉडी बॉडी शेप, उनके बॉडी सिमेट्री जो थी वो बहुत परफेक्ट मानी जाती थी उस टाइम में। तो अगर वो फिल हीथ जो है वो अपने 80% तैयारी के साथ भी एनपीसी, अगर इंडियन और पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स के साथ compete करते हैं, तो वो डेफिनेटली उनको बीट कर देंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स प्लेज द बिग रोल। For example, world of sports, mostly runners who win gold medal were from African countries like Kenya, Nigeria, Zimbabwe, Ethiopia. अगर आप उनका लिविंग स्टैंडर्ड्स देखें तो मोस्टली पीपल आर लिविंग बिलो देयर पुअर क्लास। लिविंग बिलो पुअर क्लास, उनको 2 टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल से नसीब होती है। They have no shoes for running, but they all, when come on the stage, world class stage, they beat international athletes. You can check easily on the internet. एवन 2020 में जो ओलंपिया में जो 100 मीटर की रेस थी, उसमें जिस एथलीट ने गोल्ड मेडल लिया था वो एक अमेरिकन था, जो ब्लैक अमेरिकन था, जो बाद में एक इटली का सिटीजन बन चुका था। आप इजीली इसको भी इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या जेनेटिक्स का हमारे न्यूट्रिशन में क्या भूमिका है। जी हाँ, बड़ी बहुत बहुत बड़ी भूमिका है जेनेटिक्स की हमारे। फॉर एग्जांपल, सम पीपल ड्रिंक 2 लीटर मिल्क। कुछ लोग 2 लीटर दूध पी जाते हैं पूरे दिन में, उनको कुछ नहीं होता, और कुछ लोग 1 डेढ़ लीटर दूध पी लेंगे तो उनका स्टमक अपसेट हो जाएगा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 1 कप दूध का पी लेते हैं तो उनको एलर्जी हो जाती है। सम पीपल ईट 4 एग्स पर डे, दे डाइजेस्ट इट इजीली, वो आसानी से पचा लेते हैं। कुछ लोग वही 4 अंडे खाने वाले लोग अगर 4 की शेयर कर देते हैं तो उनको डाइजेस्ट नहीं होता, उनका स्टमक अपसेट हो जाता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको 1 अंडा भी खा लेते हैं तो उनको एलर्जी हो जाती है। सेम चीज़ नट्स में आती है, सी फूड्स में आती है, सप्लीमेंट्स में भी आते हैं। दे गॉट स्किन प्रॉब्लम्स। ये सब जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। वी कैन कॉल इट जेनेटिक्स एंड लिमिटेशंस। तो अब हम बात करते हैं मसल बिल्डिंग, फैट लूज, बॉडी बिल्डिंग की। डज जेनेटिक्स प्ले रोल इन दीज थिंग्स? यस, डेफिनेटली genetics play a big role. For example, 2 persons started together. दो लड़कियों ने इकट्ठे स्टार्ट किया। पर्सन ए इज़ इंडियन गर्ल एंड पर्सन बी इज़ ए स्पेनिश गर्ल। पर्सन ए इज़ डूइंग हिप थ्रस्ट day in day out from 4 years, and still her ass is flat. But person B is doing just from 2 years. At the starting, she was also flat, but she did his glutes like a bridge, or you can say half moon. This is called genetics. How it all happens. Person A, who has only 200 muscle cells. Person B, who has 500 muscle cells. That's the difference. Hard work cannot beat genetics.
Uh, Now the question is, two girls are doing same things, same cardio, they are taking same calories, but why there is a difference in between their fat loss? The answer is genetics. Genetics means your testosterone, your hormones, your hormone growth productions, your insulin rejections. These all things play big role in your genetics. How can how can we check our genetics for bodybuilding? For beginners, first of all, you should do bulking. Bulk in like for 1 year or 1.5 year, do bulk. Then 3 or 4 months, you should get your body lean, then go on the stage. For example, in bulking, your weight was 80 kg, and when you go on the stage, your weight was 62 to 65 kg. You were lean, but still you were not shredded. That 62 to 65 kg weight on the stage, it's your first point. Now you can go back for bulking. You should bulk 1 year or 1.5 year, then do cutting for 3 to 4 months cutting, then go to the stage. If you are increasing your weight 2 or 3 kg, then you should continue this bodybuilding. Your genetics are good, do it again. Your genetic limitations will complete in 4 to 6 years. 4 से 6 साल तक आपकी जेनेटिक लिमिटेशन पूरी हो जाए. Then after do it with steroids. If you are gaining 2 to 3 kg per year lean gain, then you should continue this bodybuilding. Your health is good, your blood tests are fine, you are feeling good, your sex drive is fine, your no hair loss, then your genetics are very good. You can continue your bodybuilding. आई होप आप लोगों को मेरा ये इंफॉर्मेशनल व्लॉग अच्छा लगा होगा. सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों से, अपने भाई बहनों से सब्सक्राइब भी करवाइए. थैंक यू सो मच. अब बात आती है कि जेनेटिक्स का हमारे न्यूट्रिशन में क्या रोल है. यस, जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है. शर्मा रहा हूँ, गांड फट रही है. क्या आपने कभी सोचा है भी, कई लोग बिना ज़्यादा मेहनत किए ही फिट हो जाते हैं, और कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलते, वो फिट होने के लिए स्ट्रगल करते हैं. क्या सब कुछ जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है? चलिए हम आज जानते हैं सच. तो जेनेटिक्स डिसाइड करते हैं आपका बॉडी टाइप, मतलब आप नेचुरली कितने स्लिम हो, मस्कुलर हो, या फिर आप फैट ज़्यादा स्टोर करते हो. अगर आप जिम जाते हो तो आप कितनी स्पीड से वेट गेन करते हो, या कितनी स्पीड से अगर आप अपना वेट लूज करते हो. इट ऑल इफेक्ट्स योर जेनेटिक्स. Even every bodybuilder genetics are different. Their body parts are different. Their body shapes are different. Their muscle shapes are different. Some of their muscle shapes are their weak point, and some of their muscle shapes are their strong point. तो अब बात करते हैं हम मिस्टर ओलंपिया फिल हीथ की, जो लगातार 7 बार मिस्टर ओलंपिया रह चुके थे. वो अपने टाइम में सबसे डोमिनेट बॉडी बिल्डर में से एक थे, और उनका मसल, बॉडी बॉडी शेप, उनकी बॉडी सिमेट्री जो थी वो बहुत परफेक्ट मानी जाती थी उस टाइम में. तो अगर वो फिल हीथ जो है वो अपने 80% तैयारी के साथ भी एनपीसी, अगर इंडियन और पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स के साथ compete करते हैं, तो वो डेफिनेटली उनको बीट कर देंगे. क्यों? बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स. जेनेटिक्स प्लेज द बिग रोल. For example, world of sports, mostly runners who win gold medal were from African countries like Kenya, Nigeria, Zimbabwe, Ethiopia. अगर आप उनका लिविंग स्टैंडर्ड्स देखें तो मोस्टली पीपल आर लिविंग बिलो देयर पुअर क्लास,
लिविंग बिलो पुअर क्लास, उनको 2 टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल से नसीब होती है। दे हैव नो शूज़ फॉर रनिंग, बट दे ऑल व्हेन कम ऑन द स्टेज, वर्ल्ड क्लास स्टेज, दे बीट इंटरनेशनल एथलीट्स। यू कैन चेक इज़िली ऑन द इंटरनेट। एवन 2020 में जो ओलंपिया में जो 100 मीटर की रेस थी, उसमें जिस एथलीट ने गोल्ड मेडल लिया था, वो एक अमेरिकन था, जो ब्लैक अमेरिकन था, जो बाद में एक इटली का सिटीज़न बन चुका था। आप इजीली इसको भी इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या जेनेटिक्स का हमारे न्यूट्रिशन में क्या भूमिका है? जी हाँ, बड़ी बहुत बहुत बड़ी भूमिका है जेनेटिक्स की हमारे। फॉर एग्जांपल, सम पीपल ड्रिंक 2 लीटर मिल्क। कुछ लोग 2 लीटर दूध पी जाते हैं पूरे दिन में, उनको कुछ नहीं होता। और कुछ लोग 1 डेढ़ लीटर दूध पी लेंगे तो उनका स्टमक अपसेट हो जाएगा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 1 कप दूध का पी लेते हैं तो उनको एलर्जी हो जाती है। सम पीपल ईट 4 एग्स पर डे, दे डाइजेस्ट इट इजीली, वो आसानी से पचा लेते हैं। कुछ लोग वही 4 अंडे खाने वाले लोग अगर 4 की शेयर कर देते हैं तो उनको डाइजेस्ट नहीं होता, उनका स्टमक अपसेट हो जाता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको 1 अंडा भी खा लेते हैं तो उनको एलर्जी हो जाती है। सेम चीज़ नट्स में आती है, सी फूड्स में आती है, सप्लीमेंट्स में भी आते हैं। दे गॉट स्किन प्रॉब्लम्स। ये सब जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। वी कैन कॉल इट जेनेटिक्स एंड लिमिटेशंस। तो अब हम बात करते हैं मसल बिल्डिंग, फैट लूज, बॉडी बिल्डिंग की। डज जेनेटिक्स प्ले रोल इन दीज थिंग्स? यस, डेफिनेटली genetics play a big role. For example, two persons started together. दो लड़कियों ने इकट्ठे स्टार्ट किया। पर्सन ए इज़ इंडियन गर्ल एंड पर्सन बी इज़ ए स्पेनिश गर्ल। पर्सन ए इज़ डूइंग हिप थ्रस्ट day in day out from 4 years and still her ass is flat. But person B is doing just from 2 years. At the starting, she was also flat, but she did his glutes like a bridge, or you can say half moon. This is called genetics. How it all happens. Person A, who has only 200 muscle cells. Person B, who has 500 muscle cells. That's the difference. Hard work cannot beat genetics. Uh, Now the question is, two girls are doing same things, same cardio, they are taking same calories, but why there is a difference in between their fat loss? The answer is genetics. Genetics means your testosterone, your hormones, your hormone growth productions, your insulin rejections. These all things play a big role in your genetics. How can how can we check our genetics for bodybuilding? For beginners, first of all, you should do bulking. Bulk in like for 1 year or 1.5 year, do bulk. Then 3 or 4 months, you should get your body lean. Then go on the stage. For example, in bulking, your weight was 80 kg, and when you go on the stage, your weight was 62 to 65 kg. You were lean, but still you were not shredded. That 62 to 65 kg weight on the stage, it's your first point. Now you can go back for bulking. You should bulk 1 year or 1.5 year, then do cutting for 3 to 4 months cutting, then go to the stage. If you are increasing your weight 2 or 3 kg, then you should continue this bodybuilding. Your genetics are good, do it again. Your genetic limitations will complete in 4 to 6 years. 4 से 6 साल तक आपकी genetic limitation पूरी हो जाए. Then after do it with steroids. If you are gaining 2 to 3 kg per year lean gain,
then you should continue this bodybuilding. Your health is good, your blood tests are fine, you are feeling good, your sex drive is fine, no hair loose, then your genetics are very good. You can continue your bodybuilding. आई होप आप लोगों को मेरा ये इंफॉर्मेशनल व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों से, अपने भाई बहनों से सब्सक्राइब भी करवाइए। थैंक यू सो मच। अब बात आती है कि जेनेटिक्स का हमारे न्यूट्रिशन में क्या रोल है। यस, जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। शर्मा रहा हूँ, गांड फट रही है। क्या आपने कभी सोचा है भी, कई लोग बिना ज़्यादा मेहनत किए ही फिट हो जाते हैं और कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलते, वो फिट होने के लिए स्ट्रगल करते हैं। क्या सब कुछ जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है? चलिए हम आज जानते हैं सच। तो जेनेटिक्स डिसाइड करते हैं आपका बॉडी टाइप, मतलब आप नेचुरली कितने स्लिम हो, मस्कुलर हो, या फिर आप फैट ज़्यादा स्टोर करते हो। अगर आप जिम जाते हो तो आप कितनी स्पीड से वेट गेन करते हो, या कितनी स्पीड से अगर आप अपना वेट लूज करते हो। इट ऑल इफेक्ट्स योर जेनेटिक्स। इवन एवरी बॉडी बिल्डर जेनेटिक्स आर डिफरेंट, देयर बॉडी पार्ट्स आर डिफरेंट, देयर बॉडी शेप्स आर डिफरेंट, देयर मसल शेप्स आर डिफरेंट। Some of their muscle shapes are their weak point, and some of their muscle shapes are their strong point. तो अब बात करते हैं हम मिस्टर ओलंपिया फिल हीथ की, जो लगातार 7 बार मिस्टर ओलंपिया रह चुके थे। वो अपने टाइम में सबसे डोमिनेट बॉडी बिल्डर में से एक थे, और उनका मसल, बॉडी बॉडी शेप, उनके बॉडी सिमेट्री जो थी वो बहुत परफेक्ट मानी जाती थी उस टाइम में। तो अगर वो फिल हीथ जो है वो अपने 80% तैयारी के साथ भी एनपीसी, अगर इंडियन और पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स के साथ compete करते हैं, तो वो डेफिनेटली उनको बीट कर देंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स प्लेज द बिग रोल। For example, world of sports, mostly runners who win gold medal were from African countries like Kenya, Nigeria, Zimbabwe, Ethiopia. अगर आप उनका लिविंग स्टैंडर्ड्स देखें तो मोस्टली पीपल आर लिविंग बिलो देयर पुअर क्लास। लिविंग बिलो पुअर क्लास, उनको 2 टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल से नसीब होती है। दे हैव नो शूज़ फॉर रनिंग, but they all, when come on the stage, world class stage, they beat international athletes. You can check easily on the internet. एवन 2020 में जो ओलंपिया में जो 100 मीटर की रेस थी, उसमें जिस एथलीट ने गोल्ड मेडल लिया था वो एक अमेरिकन था, जो ब्लैक अमेरिकन था, जो बाद में एक इटली का सिटीज़न बन चुका था। आप इजीली इसको भी इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या जेनेटिक्स का हमारे न्यूट्रिशन में क्या भूमिका है। जी हाँ, बड़ी, बहुत बहुत बड़ी भूमिका है जेनेटिक्स की हमारे। फॉर एग्जांपल, सम पीपल ड्रिंक 2 लीटर मिल्क। कुछ लोग 2 लीटर दूध पी जाते हैं पूरे दिन में, उनको कुछ नहीं होता। और कुछ लोग 1 डेढ़ लीटर दूध पी लेंगे तो उनका स्टमक अपसेट हो जाएगा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 1 कप दूध का पी लेते हैं तो उनको एलर्जी हो जाती है। सम पीपल ईट 4 एग्स पर डे, दे डाइजेस्ट इट इजीली, आसानी से पचा लेते हैं। कुछ लोग वही 4 अंडे खाने वाले लोग अगर 4 की शेयर कर देते हैं तो उनको डाइजेस्ट नहीं होता, उनका स्टमक अपसेट हो जाता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको 1 अंडा भी खा लेते हैं तो उनको एलर्जी हो जाती है। सेम चीज़ नट्स में आती है, सी फूड्स में आती है, सप्लीमेंट्स में भी आते हैं। दे गॉट स्किन प्रॉब्लम्स। ये सब जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। वी कैन कॉल इट जेनेटिक्स एंड लिमिटेशंस। तो अब हम बात करते हैं मसल बिल्डिंग, फैट लूज, बॉडी बिल्डिंग की। डज जेनेटिक्स प्ले रोल इन दीज थिंग्स? यस, डेफिनेटली।
genetics play a big role. For example, two persons started together. दो लड़कियों ने इकट्ठे स्टार्ट किया. Person A is Indian girl and person B is a Spanish girl. Person A is doing hip thrust day in day out from 4 years and still her ass is flat. But person B is doing just from 2 years. At the starting, she was also flat, but she did his glutes like a bridge or you can say half moon. This is called genetics. How it all happens. Person A who has only 200 muscle cells. Person B who has 500 muscle cells. That's the difference. Hard work cannot beat genetics. Uh, Now the question is, two girls are doing same things, same cardio, they are taking same calories, but why there is a difference in between their fat loss? The answer is genetics. Genetics means your testosterone, your hormones, your hormone growth productions, your insulin rejections. These all things play big role in your genetics. How can how can we check our genetics for bodybuilding? For beginners, first of all, you should do bulking. Bulk in like for 1 year or 1.5 year, do bulk. Then 3 or 4 months, you should get your body lean. Then go on the stage. For example, in bulking, your weight was 80 kg, and when you go on the stage, your weight was 62 to 65 kg. You were lean, but still you were not shredded. That 62 to 65 kg weight on the stage, it's your first point. Now you can go back for bulking. You should bulk 1 year or 1.5 year, then do cutting for 3 to 4 months cutting, then go to the stage. If you are increasing your weight 2 or 3 kg, then you should continue this bodybuilding. Your genetics are good, do it again. Your genetic limitations will कंप्लीट इन 4 to 6 years. 4 से 6 साल तक आपकी जेनेटिक लिमिटेशन पूरी हो जाए. देन आफ्टर डू इट विद स्टीरॉइड्स. If you are gaining 2 to 3 kg per year lean gain, then you should continue this bodybuilding. Your health is good, your blood tests are fine, you are feeling good, your sex drive is fine, your no hair loss, then your genetics are very good. You can continue your bodybuilding. आई होप आप लोगों को मेरा ये इंफॉर्मेशनल व्लॉग अच्छा लगा होगा. सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों से, अपने भाई बहनों से सब्सक्राइब भी करवाइए. थैंक यू सो मच. अब बात आती है कि जेनेटिक्स का हमारे न्यूट्रिशन में क्या रोल है. यस, जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है. शर्मा रहा हूँ, गांड फट रही है. क्या आपने कभी सोचा है भी, कई लोग बिना ज़्यादा मेहनत किए ही फिट हो जाते हैं और कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलते, वो फिट होने के लिए स्ट्रगल करते हैं. क्या सब कुछ जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है? चलिए हम आज जानते हैं सच. तो जेनेटिक्स डिसाइड करते हैं आपका बॉडी टाइप, मतलब आप नेचुरली कितने स्लिम हो, मस्कुलर हो या फिर आप फैट ज़्यादा स्टोर करते हो. अगर आप जिम जाते हो तो आप कितनी स्पीड से वेट गेन करते हो या कितनी स्पीड से अगर आप अपना वेट लूज करते हो. इट ऑल इफेक्ट्स योर जेनेटिक्स. Even every bodybuilder genetics are different. Their body parts are different. Their body shapes are different. Their muscle shapes are different. Some of their muscle shapes are their weak point, and some of their muscle shapes are their strong point. तो अब बात करते हैं हम
मिस्टर ओलंपिया फिल हीथ की, जो लगातार 7 बार मिस्टर ओलंपिया रह चुके थे। वो अपने टाइम में सबसे डोमिनेट बॉडी बिल्डर में से एक थे। और उनका मसल, बॉडी बॉडी शेप, उनकी बॉडी सिमेट्री जो थी वो बहुत परफेक्ट मानी जाती थी उस टाइम में। तो अगर वो फिल हीथ जो है वो अपने 80% तैयारी के साथ भी एनपीसी, अगर इंडियन और पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स के साथ compete करते हैं तो वो डेफिनेटली उनको बीट कर देंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स प्लेज द बिग रोल। For example, world of sports, mostly runners who win gold medal were from African countries like Kenya, Nigeria, Zimbabwe, Ethiopia. अगर आप उनका लिविंग स्टैंडर्ड्स देखें तो मोस्टली पीपल आर लिविंग बिलो देयर पुअर क्लास। लिविंग बिलो पुअर क्लास, उनको 2 टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल से नसीब होती है। they have no shoes for running, but they all, when come on the stage, world class stage, they beat international athletes. You can check easily on the internet. एवन 2020 में जो ओलंपिया में जो 100 मीटर की रेस थी उसमें जिस एथलीट ने गोल्ड मेडल लिया था वो एक अमेरिकन था, जो ब्लैक अमेरिकन था, जो बाद में एक इटली का सिटीजन बन चुका था। आप इजीली इसको भी इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या जेनेटिक्स का हमारे न्यूट्रिशन में क्या भूमिका है। जी हाँ, बड़ी बहुत बहुत बड़ी भूमिका है जेनेटिक्स की हमारे। फॉर एग्जांपल, सम पीपल ड्रिंक 2 लीटर मिल्क। कुछ लोग 2 लीटर दूध पी जाते हैं पूरे दिन में, उनको कुछ नहीं होता। और कुछ लोग 1 1.5 लीटर दूध पी लेंगे तो उनका स्टमक अपसेट हो जाएगा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 1 कप दूध का पी लेते हैं तो उनको एलर्जी हो जाती है। सम पीपल ईट 4 एग्स पर डे, दे डाइजेस्ट इट इजीली, वो आसानी से पचा लेते हैं। कुछ लोग वही 4 अंडे खाने वाले लोग अगर 4 की शेयर कर देते हैं तो उनको डाइजेस्ट नहीं होता, उनका स्टमक अपसेट हो जाता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको एक अंडा भी खा लेते हैं तो उनको एलर्जी हो जाती है। सेम चीज़ नट्स में आती है, सी फूड्स में आती है, सप्लीमेंट्स में भी आते हैं। दे गॉट स्किन प्रॉब्लम्स। ये सब जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। वी कैन कॉल इट जेनेटिक्स एंड लिमिटेशंस। तो अब हम बात करते हैं मसल बिल्डिंग, फैट लूज, बॉडी बिल्डिंग की। डज जेनेटिक्स प्ले रोल इन दीज थिंग्स? यस, डेफिनेटली genetics play a big role. For example, 2 person started together. दो लड़कियों ने इकट्ठे स्टार्ट किया। पर्सन ए इज़ इंडियन गर्ल एंड पर्सन बी इज़ ए स्पेनिश गर्ल। पर्सन ए इज़ डूइंग हिप थ्रस्ट day in day out from 4 years and still her ass is flat. But person B is doing just from 2 years. At the starting, she was also flat, but she did his glutes like a bridge, or you can say half moon. This is called genetics. How it all happens. Person A, who has only 200 muscle cells. Person B, who has 500 muscle cells. That's the difference. Hard work cannot beat genetics. Uh, Now the question is, two girls are doing same things, same cardio, they are taking same calories, but why there is a difference in between their fat loss? The answer is genetics. Genetics means your testosterone, your hormones, your hormone growth productions, your insulin rejections. These all things play big role in your genetics. How can how can we check our genetics for bodybuilding? For beginners, first of all, you should do bulking. Bulk in like for 1 year or 1.5 year, do bulk. Then 3 or 4 months, you should get your body lean. Then go on the stage. For example, in bulking, your weight was 80 kg, and when you go on the stage, your weight was 62 to 65 kg. You were lean,
but still you were not shredded. That 62 to 65 kg weight on the stage, it's your first point. Now you can go back for bulking. You should bulk 1 year or 1.5 year, then do cutting for 3 to 4 months cutting, then go to the stage. If you are increasing your weight 2 or 3 kg, then you should continue this bodybuilding. Your genetics are good, do it again. Your genetic limitations will complete in 4 to 6 years. 4 से 6 साल तक आपकी जेनेटिक लिमिटेशन पूरी हो जाएगी. Then after do it with steroids. If you are gaining 2 to 3 kg per year lean gain, then you should continue this bodybuilding. Your health is good, your blood tests are fine, you are feeling good, your sex drive is fine, your no hair loss, then your genetics are very good, you can continue your bodybuilding. आई होप आप लोगों को मेरा ये इंफॉर्मेशनल व्लॉग अच्छा लगा होगा. सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों से, अपने भाई बहनों से सब्सक्राइब भी करवाइए. थैंक यू सो मच. अब बात आती है कि जेनेटिक्स का हमारे न्यूट्रिशन में क्या रोल है. यस, जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है. शर्मा रहा हूँ, गांड फट रही है. क्या आपने कभी सोचा है भी, कई लोग बिना ज़्यादा मेहनत किए ही फिट हो जाते हैं और कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलते, वो फिट होने के लिए स्ट्रगल करते हैं. क्या सब कुछ जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है? चलिए हम आज जानते हैं सच. तो जेनेटिक्स डिसाइड करते हैं आपका बॉडी टाइप, मतलब आप नेचुरली कितने स्लिम हो, मस्कुलर हो, या फिर आप फैट ज़्यादा स्टोर करते हो. अगर आप जिम जाते हो तो आप कितनी स्पीड से वेट गेन करते हो, या कितनी स्पीड से अगर आप अपना वेट लूज करते हो. इट ऑल इफेक्ट्स योर जेनेटिक्स. Even every bodybuilder genetics are different. Their body parts are different, their body shapes are different, their muscle shapes are different. Some of their muscle shapes are their weak point, and some of their muscle shapes are their strong point. तो अब बात करते हैं हम मिस्टर ओलंपिया फिल हीथ की, जो लगातार 7 बार मिस्टर ओलंपिया रह चुके थे. वो अपने टाइम में सबसे डोमिनेट बॉडी बिल्डर में से एक थे, और उनका मसल, बॉडी बॉडी शेप, उनकी बॉडी सिमेट्री जो थी वो बहुत परफेक्ट मानी जाती थी उस टाइम में. तो अगर वो फिल हीथ जो है वो अपने 80% तैयारी के साथ भी एनपीसी, अगर इंडियन और पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स के साथ compete करते हैं, तो वो डेफिनेटली उनको बीट कर देंगे. क्यों? बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स. जेनेटिक्स प्लेज द बिग रोल. For example, world of sports, mostly runners who win gold medal were from African countries like Kenya, Nigeria, Zimbabwe, Ethiopia. अगर आप उनका लिविंग स्टैंडर्ड्स देखें तो मोस्टली पीपल आर लिविंग बिलो देयर पुअर क्लास. लिविंग बिलो पुअर क्लास. उनको 2 टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल से नसीब होती है. They have no shoes for running, but they all, when come on the stage, world class stage, they beat international athletes. You can check easily on the internet. एवन 2020 में जो ओलंपिया में जो 100 मीटर की रेस थी, उसमें जिस एथलीट ने गोल्ड मेडल लिया था वो एक अमेरिकन था, जो ब्लैक अमेरिकन था, जो बाद में एक इटली का सिटीज़न बन चुका था. आप इजीली इसको भी इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं. अब बात आती है कि क्या जेनेटिक्स का हमारे न्यूट्रिशन में क्या भूमिका है. जी हाँ, बड़ी बहुत बहुत बड़ी भूमिका है जेनेटिक्स की हमारे. फॉर एग्जांपल, सम पीपल ड्रिंक 2 लीटर मिल्क. कुछ लोग 2 लीटर दूध पी जाते हैं पूरे दिन में, उनको कुछ नहीं होता. और कुछ लोग 1 डेढ़ लीटर दूध पी लेंगे तो उनका स्टमक अपसेट हो जाएगा.
और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक कप दूध का पी लेते हैं तो उनको एलर्जी हो जाती है। सम पीपल ईट 4 eggs पर डे, दे डाइजेस्ट इट इजीली, वो आसानी से पचा लेते हैं। कुछ लोग वही 4 अंडे खाने वाले लोग अगर 4 की शेयर कर देते हैं तो उनको डाइजेस्ट नहीं होता, उनका स्टमक अपसेट हो जाता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको एक अंडा भी खा लेते हैं तो उनको एलर्जी हो जाती है। सेम चीज़ नट्स में आती है, सी फूड्स में आती है, सप्लीमेंट्स में भी आते हैं। दे गॉट स्किन प्रॉब्लम्स। ये सब जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। वी कैन कॉल इट जेनेटिक्स एंड लिमिटेशंस। तो अब हम बात करते हैं मसल बिल्डिंग, फैट लूज, बॉडी बिल्डिंग की। डज जेनेटिक्स प्ले रोल इन दीज थिंग्स? यस, डेफिनेटली genetics play a big role. For example, two persons started together. दो लड़कियों ने इकट्ठे स्टार्ट किया। पर्सन ए इज़ इंडियन गर्ल एंड पर्सन बी इज़ ए स्पेनिश गर्ल। पर्सन ए इज़ डूइंग हिप थ्रस्ट day in day out from 4 years and still her ass is flat. But person B is doing just from 2 years. At the starting, she was also flat, but she did his glutes like a bridge, or you can say half moon. This is called genetics. How it all happens. Person A who has only 200 muscle cells. Person B who has 500 muscle cells. That's the difference. Hard work cannot beat genetics. Uh, Now the question is, two girls are doing same things, same cardio, they are taking same calories, but why there is a difference in between their fat loss? The answer is genetics. Genetics means your testosterone, your hormones, your hormone growth productions, your insulin rejections. These all things play a big role in your genetics. How can how can we check our genetics for bodybuilding? For beginners, first of all, you should do bulking. Bulk in like for 1 year or 1.5 year, do bulk. Then 3 or 4 months, you should get your body lean. Then go on the stage. For example, in bulking, your weight was 80 kg, and when you go on the stage, your weight was 62 to 65 kg. You were lean, but still you were not shredded. That 62 to 65 kg weight on the stage, it's your first point. Now you can go back for bulking. You should bulk 1 year or 1.5 year, then do cutting for 3 to 4 months cutting, then go to the stage. If you are increasing your weight 2 or 3 kg, then you should continue this bodybuilding. Your genetics are good, do it again. Your genetic limitations will complete in 4 to 6 years. 4 से 6 साल तक आपकी genetic limitation पूरी हो जाए. Then after do it with steroids. If you are gaining 2 to 3 kg per year lean gain, then you should continue this bodybuilding. Your health is good, your blood tests are fine, you are feeling good, your sex drive is fine, no hair loss, then your genetics are very good. You can continue your bodybuilding. आई होप आप लोगों को मेरा ये इंफॉर्मेशनल व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों से, अपने भाई बहनों से सब्सक्राइब भी करवाइए। थैंक यू सो मच। अब बात आती है कि जेनेटिक्स का हमारे न्यूट्रिशन में क्या रोल है। यस, जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। शर्मा रहा हूँ, गांड फट रही है।
क्या आपने कभी सोचा है भी कई लोग बिना ज़्यादा मेहनत किए ही फिट हो जाते हैं और कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलते, वो फिट होने के लिए स्ट्रगल करते हैं। क्या सब कुछ जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है? चलिए हम आज जानते हैं सच। तो जेनेटिक्स डिसाइड करते हैं आपका बॉडी टाइप, मतलब आप नेचुरली कितने स्लिम हो, मस्कुलर हो या फिर आप फैट ज़्यादा स्टोर करते हो। अगर आप जिम जाते हो तो आप कितनी स्पीड से वेट गेन करते हो या कितनी स्पीड से अगर आप अपना वेट लूज करते हो, इट ऑल इफेक्ट्स योर जेनेटिक्स। Even every bodybuilder genetics are different, their body parts are different, their body shapes are different, their muscle shapes are different. Some of their muscle shapes are their weak point and some of their muscle shapes are their strong point. तो अब बात करते हैं हम मिस्टर ओलंपिया फिल हीथ की, जो लगातार 7 बार मिस्टर ओलंपिया रह चुके थे। वो अपने टाइम में सबसे डोमिनेट बॉडी बिल्डर में से एक थे और उनका मसल, बॉडी बॉडी शेप, उनकी बॉडी सिमेट्री जो थी वो बहुत परफेक्ट मानी जाती थी उस टाइम में। तो अगर वो फिल हीथ जो है वो अपने 80% तैयारी के साथ भी एनपीसी, अगर इंडियन और पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स के साथ compete करते हैं तो वो डेफिनेटली उनको बीट कर देंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स प्लेज द बिग रोल। For example, world of sports, mostly runners who win gold medal were from African countries like Kenya, Nigeria, Zimbabwe, Ethiopia. अगर आप उनका लिविंग स्टैंडर्ड्स देखें तो मोस्टली पीपल आर लिविंग बिलो देयर पुअर क्लास। लिविंग बिलो पुअर क्लास, उनको 2 टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल से नसीब होती है। They have no shoes for running, but they all, when come on the stage, world class stage, they beat international athletes. You can check easily on the internet. एवन 2020 में जो ओलंपिया में जो 100 मीटर की रेस थी उसमें जिस एथलीट ने गोल्ड मेडल लिया था वो एक अमेरिकन था, जो ब्लैक अमेरिकन था, जो बाद में एक इटली का सिटीजन बन चुका था। आप इजीली इसको भी इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या जेनेटिक्स का हमारे न्यूट्रिशन में क्या भूमिका है। जी हाँ, बड़ी बहुत बहुत बड़ी भूमिका है जेनेटिक्स की हमारे। फॉर एग्जांपल, सम पीपल ड्रिंक 2 लीटर मिल्क। कुछ लोग 2 लीटर दूध पी जाते हैं पूरे दिन में, उनको कुछ नहीं होता। और कुछ लोग 1 डेढ़ लीटर दूध पी लेंगे तो उनका स्टमक अपसेट हो जाएगा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 1 कप दूध का पी लेते हैं तो उनको एलर्जी हो जाती है। सम पीपल ईट 4 एग्स पर डे, दे डाइजेस्ट इट इजीली, आसानी से पचा लेते हैं। कुछ लोग वही 4 अंडे खाने वाले लोग अगर 4 की शेयर कर देते हैं तो उनको डाइजेस्ट नहीं होता, उनका स्टमक अपसेट हो जाता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको 1 अंडा भी खा लेते हैं तो उनको एलर्जी हो जाती है। सेम चीज़ नट्स में आती है, सी फूड्स में आती है, सप्लीमेंट्स में भी आते हैं। दे गॉट स्किन प्रॉब्लम्स। ये सब जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। वी कैन कॉल इट जेनेटिक्स एंड लिमिटेशंस। तो अब हम बात करते हैं मसल बिल्डिंग, फैट लूज, बॉडी बिल्डिंग की। डज जेनेटिक्स प्ले रोल इन दीज थिंग्स? यस, डेफिनेटली genetics play a big role. For example, 2 persons started together. 2 लड़कियों ने इकट्ठे स्टार्ट किया। पर्सन ए इज़ इंडियन गर्ल एंड पर्सन बी इज़ ए स्पेनिश गर्ल। पर्सन ए इज़ डूइंग हिप थ्रस्ट day in day out from 4 years and still her ass is flat. But person B is doing just from 2 years. At the starting, she was also flat, but she did his glutes like a bridge or you can say half moon. This is called genetics. How it all happens. Person A who has only 200 muscle cells. Person B who has 500 muscle cells. That's the difference. Hard work cannot beat genetics. Now the question is, two girls are doing same things.
same cardio, they are taking same calories, but why there is a difference in between their fat loss? The answer is genetics. Genetics means your testosterone, your hormones, your hormone growth productions, your insulin rejections. These all things play big role in your genetics. How can how can we check our genetics for bodybuilding? For beginners, first of all, you should do bulking. Bulk in like for 1 year or 1.5 year, do bulk. Then 3 or 4 months, you should get your body lean. Then go on the stage. For example, in bulking, your weight was 80 kg, and when you go on the stage, your weight was 62 to 65 kg. You was lean, you were lean, but still you were not shredded. That 62 to 65 kg weight on the stage, it's your first point. Now you can go back for bulking. You should bulk 1 year or 1.5 year, then do cutting for 3 to 4 months cutting, then go to the stage. If you are increasing your weight 2 or 3 kg, then you should continue this bodybuilding. Your genetics are good, do it again. Your genetic limitations will कंप्लीट इन 4 to 6 years. 4 से 6 साल तक आपकी जेनेटिक लिमिटेशन पूरी हो जाए. देन आफ्टर डू इट विद स्टीरॉइड्स. इफ यू आर गेनिंग 2 to 3 kg per year lean gain, then you should continue this bodybuilding. Your health is good, your blood tests are fine, you are feeling good, your sex drive is fine, your no hair loss, then your genetics are very good, you can continue your bodybuilding. आई होप आप लोगों को मेरा ये इंफॉर्मेशनल व्लॉग अच्छा लगा होगा. सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों से, अपने भाई बहनों से सब्सक्राइब भी करवाइए. थैंक यू सो मच. अब बात आती है कि जेनेटिक्स का हमारे न्यूट्रिशन में क्या रोल है. यस, जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है. शर्मा रहा हूँ, गांड फट रही है. क्या आपने कभी सोचा है भी, कई लोग बिना ज़्यादा मेहनत किए ही फिट हो जाते हैं और कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलते, वो फिट होने के लिए स्ट्रगल करते हैं. क्या सब कुछ जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है? चलिए हम आज जानते हैं सच. तो जेनेटिक्स डिसाइड करते हैं आपका बॉडी टाइप, मतलब आप नेचुरली कितने स्लिम हो, मस्कुलर हो, या फिर आप फैट ज़्यादा स्टोर करते हो. अगर आप जिम जाते हो तो आप कितनी स्पीड से वेट गेन करते हो, या कितनी स्पीड से अगर आप अपना वेट लूज करते हो. इट ऑल इफेक्ट्स योर जेनेटिक्स. Even every bodybuilder genetics are different. Their body parts are different. Their body shapes are different. Their muscle shapes are different. Some of their muscle shapes are their weak point, and some of their muscle shapes are their strong point. तो अब बात करते हैं हम मिस्टर ओलंपिया फिल हीथ की, जो लगातार 7 बार मिस्टर ओलंपिया रह चुके थे. वो अपने टाइम में सबसे डोमिनेट बॉडी बिल्डर में से एक थे, और उनका मसल, बॉडी बॉडी शेप, उनकी बॉडी सिमेट्री जो थी वो बहुत परफेक्ट मानी जाती थी उस टाइम में. तो अगर वो फिल हीथ जो है वो अपने 80% तैयारी के साथ भी एनपीसी, अगर इंडियन और पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स के साथ compete करते हैं, तो वो डेफिनेटली उनको बीट कर देंगे. क्यों? बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स. जेनेटिक्स प्लेज द बिग रोल. For example, world of sports, mostly runners who win gold medal were from African countries like Kenya, Nigeria, Zimbabwe, Ethiopia. अगर आप उनका लिविंग स्टैंडर्ड्स देखें तो मोस्टली पीपल आर लिविंग बिलो देयर पुअर क्लास. लिविंग बिलो पुअर क्लास. उनको 2 टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल से नसीब होती है. दे हैव नो शूज़ फॉर रनिंग.
but they all, when come on the stage, world class stage, they beat international athletes. You can check easily on the internet. एवन 2020 में जो ओलंपिया में जो 100 मीटर की रेस थी उसमें जिस एथलीट ने गोल्ड मेडल लिया था वो एक अमेरिकन था, जो ब्लैक अमेरिकन था, जो बाद में एक इटली का सिटीजन बन चुका था। आप इजीली इसको भी इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या जेनेटिक्स का हमारे न्यूट्रिशन में क्या भूमिका है। जी हाँ, बड़ी बहुत बहुत बड़ी भूमिका है जेनेटिक्स की हमारे। फॉर एग्जांपल, सम पीपल ड्रिंक 2 लीटर मिल्क। कुछ लोग 2 लीटर दूध पी जाते हैं पूरे दिन में, उनको कुछ नहीं होता। और कुछ लोग 1 डेढ़ लीटर दूध पी लेंगे तो उनका स्टमक अपसेट हो जाएगा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 1 कप दूध का पी लेते हैं तो उनको एलर्जी हो जाती है। सम पीपल ईट 4 एग्स पर डे, दे डाइजेस्ट इट इजीली, वो आसानी से पचा लेते हैं। कुछ लोग वही 4 अंडे खाने वाले लोग अगर 4 की शेयर कर देते हैं तो उनको डाइजेस्ट नहीं होता, उनका स्टमक अपसेट हो जाता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको 1 अंडा भी खा लेते हैं तो उनको एलर्जी हो जाती है। सेम चीज़ नट्स में आती है, सी फूड्स में आती है, सप्लीमेंट्स में भी आते हैं। दे गॉट स्किन प्रॉब्लम्स। ये सब जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। वी कैन कॉल इट जेनेटिक्स एंड लिमिटेशंस। तो अब हम बात करते हैं मसल बिल्डिंग, फैट लूज, बॉडी बिल्डिंग की। डज जेनेटिक्स प्ले रोल इन दीज थिंग्स? यस, डेफिनेटली genetics play a big role. For example, two persons started together. दो लड़कियों ने इकट्ठे स्टार्ट किया। पर्सन ए इज़ इंडियन गर्ल एंड पर्सन बी इज़ a Spanish girl. Person A is doing hip thrust day in day out from 4 years and still her ass is flat. But person B is doing just from 2 years. At the starting, she was also flat, but she did his glutes like a bridge, or you can say half moon. This is called genetics. How it all happens. Person A, who has only 200 muscle cells. Person B, who has 500 muscle cells. That's the difference. Hard work cannot beat genetics. Uh, Now the question is, two girls are doing same things, same cardio, they are taking same calories, but why there is a difference in between their fat loss? The answer is genetics. Genetics means your testosterone, your hormones, your hormone growth productions, your insulin rejections. These all things play big role in your genetics. How can how can we check our genetics for bodybuilding? For beginners, first of all, you should do bulking. Bulk in like for 1 year or 1.5 year, do bulk. Then 3 or 4 months, you should get your body lean. Then go on the stage. For example, in bulking, your weight was 80 kg, and when you go on the stage, your weight was 62 to 65 kg. You were lean, but still you were not shredded. That 62 to 65 kg weight on the stage, it's your first point. Now you can go back for bulking. You should bulk 1 year or 1.5 year, then do cutting for 3 to 4 months cutting, then go to the stage. If you are increasing your weight 2 or 3 kg, then you should continue this bodybuilding. Your genetics are good, do it again. Your genetic limitations will complete in 4 to 6 years. 4 से 6 साल तक आपकी genetic limitation पूरी हो जाए. Then after do it with steroids. If you are gaining 2 to 3 kg per year lean gain, then you should continue this bodybuilding. Your health is good, your blood tests are fine, you are feeling good, your sex drive is fine, your no hair loss,
then your genetics are very good, you can continue your bodybuilding. आई होप आप लोगों को मेरा ये इंफॉर्मेशनल व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों से, अपने भाई बहनों से सब्सक्राइब भी करवाइए। थैंक यू सो मच। अब बात आती है कि जेनेटिक्स का हमारे न्यूट्रिशन में क्या रोल है। यस, जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। शर्मा रहा हूँ, गांड फट रही है।